10 must know things if you have recently joined MBBS or if you are in MBBS first year. What's up guys, this is Dr. Aditya Deshmukh. I am MBBS from 2016 batch and I would just like to help you guys out based on my personal experiences and share some points, some views, some things so that it might help you through the first year, intimidating year of your MBBS life. I have divided these things into two parts. One is the non-academic part of MBBS, other is academic part. And to keep things light, you must be currently very stressed and exhausted. ऐसे नए नए सब शुरू हो गया होगा फर्स्ट ईयर. सो नॉन एकेडमिक में लेट्स बिगिन विद द हॉस्टल लाइफ. हॉस्टल लाइफ का कैसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हॉस्टल में यू माइट बी आइदर लिविंग सिंगल रूम में रहते होगे या फिर यू मस्ट हैव रूममेट्स, डबल रूम. आई ऑल्सो नो इन फ्यू हॉस्टल्स लाइक नायर देयर आर लाइक 8 गर्ल्स लिविंग इन वन सिंगल रूम. आई क्या बात कर रहे हैं? एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, हॉस्टल लाइफ इज डिफिकल्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कितना भी छोटा तुम्हारा एरिया रहो, स्क्वायर फीट रहो, सिंगल रूम रहो या 8 रूम में रहो, एक अपना एरिया फिक्स कर लो. जस्ट ट्राई टू मेक इट अ होम. एक झाड़ू लेना, पोछा लेना, जस्ट ट्राई टू कीप दैट स्मॉल एरिया क्लीन, योर रूम क्लीन. बहुत फायदे में रहते हो तुम. पोस्टर्स लगाना है, पोस्टर्स लगाओ. मेक योर वर्क स्टेशन और समथिंग, फ्रेश बेड शीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो like when you wake up ना, you will feel like you are at home. Make it your home because वो तुम्हारा अगले 5-6 साल तक घर रहने वाला है. So it will help you out. ये हॉस्टल का हो गया. And try not to like roommates के साथ जितना हो सके try to adjust. It will take time but हो जाता है धीरे धीरे. So second thing is food. When it comes to food, either options होते हैं टिफिन लगाना और you have like mess, canteens और Zomato, Swiggy. So when it comes to canteens, like in some colleges you have like 3-4 canteens, so constantly you can keep trying out eating in different areas. Then you have mess, वही monotonous boring खाना है, but you have to get used to it. You don't have a choice. Then Zomato, Swiggy, I personally recommend you not to avoid ऐसे Zomato, Swiggy. Even if you have money, you don't have money, avoid it eating every single day because वो कितना भी करो, even if रोटी सब्जी मंगाओगे तो भी the food is processed. It is not homemade. जो घर का तेल होता है, जो घर का घी होता है, ऑयल होता है, वो पूरा अलग होता है. It will affect your mood, it will affect your sleep cycle, it will affect your lifestyle. So food matters. And mess हो गया, कैंटीन हो गया. टिफिन might be the probably one of the best options, but टिफिन भी monotonous boring हो जाता है. So if you have a lot of options for टिफिन, so every month, 2 months, 3 months पे you can keep changing टिफिन, switching टिफिन्स. I know it is very difficult to cook food on your own. I had my own Prestige का छोटा सा like induction. I used to cook it ऐसे बहुत not much frequently, but I used to do it. But please try and have a good breakfast. जो भी आपका रूटीन हो, 3 times meal हो, 2 times meal हो, करो, but अच्छे से खाना खाओ. Food is very important. Good food, healthy food is important. रोटी सब्जी जो भी हो, अच्छा क्वालिटी फूड खाओ. बहुत ज़रूरी है आपके मूड के लिए and for everything. So the third thing is social circle and friends. बहुत important है. I know some of you guys might be like ऐसे नए होते हैं, like you are new to it, you are awkward. Some of you are like kind of introverts. To socialize amongst people, it might be difficult for you. कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, डे वन से हाय हेलो व्हाट्सअप ये सब करते हैं. यू विल फाइंड लाइक वैरायटी ऑफ पीपल, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल ऑल ओवर यू. आई वुड सजेस्ट इज कि ऐसे डायरेक्टली ऐसे किसी को दोस्त बना लिया और फुल फ्लेज 100% इन्वेस्ट मत करो शुरुआत में. लाइक you see to it, you take time building your friendship, just like relationships we take time. ऐसे बहुत fast किया तो things might go haywire. So take time in building friendships also. See to it कि your interest match, your things match, your ideologies and everything matches. Because एक बार कोई दोस्त हो जाता है ना, मोस्टली तो सेकेंड ईयर के बाद ही जो दोस्त बनते हैं वही forever रहते हैं. But still like there are a lot of people, even me, I made my friends in first year. I lost few close friends of mine after first year. तो ये सब part of MBBS life है. It has got nothing to do with you. So don't take a lot of stress or don't worry a lot about it. But being social is extremely important. आप introvert हो, I would suggest कि try to get out of comfort zone. I am not like a lifestyle person or something. You can watch it. You can go through it or maybe I can cover it in another detailed video. But please try to get out of comfort zone. I know a lot of people, even my cousin who was also my senior, he was very introvert person. He hardly used to stay in hostel, hardly had any friends. And now he's doing MD radio. He is pretty successful, but he has a very big regret in his life. He used to have it. Right now he has been social, he has tried it. But he couldn't make friends in his undergrad years. और सच बोलता हूँ, PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो दोस्त बनते हैं वो नहीं रहते. जो अंडरग्रेड में दोस्त है वही आपके लाइफ लॉन्ग दोस्त रहेंगे. टेक इट फ्रॉम मी. कुछ भी कर लो, लाइक वो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ है. एंड प्लीज सोशलाइज. ऐसे अलूफ अकेले मत रहना. फाइंड योर ओन ट्राइब. द फोर्थ थिंग इज रैपो विथ योर सीनियर्स के साथ रैपो बनाना. इट इज वेरी एसेंशियल. इट्स नॉट लाइक या देयर आर कॉलेजेस रैगिंग होती है, लोग बोलते होंगे नहीं होती, वॉट एवर इट इज, बट या आई हैव सीन इट. आई हैव पर्सनली फेल्ट. मैं नागपुर में था, वहाँ रैगिंग
आई वॉज इन ठाणे, वहाँ पे था. आई वुड नेवर रिकमेंड एनी वन टू रैग और लाइक एंटरटेन इट या फिर रैगिंग का पार्ट बनो. बट ये भी नहीं बोलूँगा कि ऐसे लाइफस्टाइल सोशल डेवलपमेंट होता है बहुत कुछ. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट इज़ हाईली सब्जेक्टिव थिंग, वेरी सब्जेक्टिव. मेरे लिए जो थोड़ा बहुत रैगिंग वगैरह पार्ट था, आई यूज्ड टू हेट इट लाइक 40-50%. बट 50% एज आई ग्रू अप मुझे रियलाइज हुआ कि सम थिंग्स हैड हेल्प मी टू पास इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ टाइम. जैसे थर्ड बटन होता है, नीचे देख के सीनियर से बात करो. सो लाइक व्हेन आई टू स्टडी एट लास्ट मोमेंट ड्यूरिंग माई फर्स्ट टर्म्स, यूनिट टेस्ट और प्रीलिम्स, तो तब इट यूज्ड टू हेल्प मी टू लाइक give my vivas and everything. So it is very subjective thing, but don't take stress कि कुछ seniors आके they will tell you कि यार ये हम boycott कर देंगे. It is a very common thing, boycott कर देंगे, you won't be anywhere, no senior will help you with their notes, with anything or at all. डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है. You will have people आजकल YouTube पे, you have a lot of seniors, you can find your own mentor kind of thing and they will help you out. खुद से help कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो डोंट गेट स्कैर्ड. बट आई वुड सजेस्ट यू इज कि ऐसे अलूफ और अकेले अकेले मत रहो. आई हैव सीन पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ माई कलीग्स, यार वो नहीं मजा आता है. वो 5 साल निकालना बहुत मुश्किल होता है to get boycotted and not be in good rapport with your seniors. I know seniors can be toxic sometimes, but there are good seniors also, good people also. With time you will get to know them, try to get to know them and things will go good. Because सब टाइप के लोग होते हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. just keep a broad perspective for everything and be open minded to everything. So then comes amongst the non-academic part, extra co-curricular activities. I know you have come into MBBS, expectations family के रहते हैं, खुद के रहते हैं कि डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है. या that is completely important. वो top priority पे है. I agree with you, but trust me, I am at this stage. अभी realize होगा. अभी maybe at that stage you won't realize few things, but यू विल रियलाइज कि जैसे MBBS होने के बाद मैनेजेरियल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और हाउ टू हैंडल पीपल, ऑल दोज थिंग्स ना, ये बहुत कोर पार्ट होता है आपके एंटायर लाइफ का. आइदर यू गो इनटू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस, देश के बाहर जाओ, कहीं पर भी जाओ. सो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे अलग अलग फेस्ट हो गए, अलग अलग पोजिशंस हो गए, नॉट पॉलिटिक्स पर से, पॉलिटिक्स का भी पार्ट, इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बहुत स्टडीज अफेक्ट नहीं होते हैं तो यू कैन टेक पार्ट इन इट इफ इट्स नॉट रियली टॉक्सिक. इन माई कॉलेज इट वॉज अ स्लाइटली मोर टॉक्सिक थिंग. सो बट मेक श्योर कि यार नर्ड रहो, सब रहो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, सब करो, बट प्लीज़ कोई 24 घंटे पढ़ता नहीं है, टॉपर भी नहीं पढ़ता है. आई हैव सीन लोकलाइट्स. मैं मुंबई में था, आई हैव स्टडी इन मुंबई, आई वॉज अ हॉस्टलाइट. बस दिन भर फ़ोन लेके वी यूज्ड टू लाइक सीरीज़ देखो, मूवीज़ देखो, यही सब करते थे, हॉस्टल लाइफ में रहते थे, लास्ट मोमेंट पढ़ते थे, दैट्स फाइन. बट आई पर्सनली फील कि आई हैव सीन लोकलाइट्स, वो पढ़ाई करते थे, दे यूज्ड टू गेट गुड स्कोर्स, गुड मार्क्स, दे यूज्ड टू कंसिस्टेंटली स्टडी, दे यूज्ड टू ट्रैवल इन मुंबई, लोकल्स, और वो या दे हैड बीन ब्रॉट अप इन मुंबई, वो उनको एडवांटेज था. बट दे यूज्ड टू डू एवरीथिंग. क्लब्स जाओ, पार्टी करो, पढ़ाई करो, have friends and everything. They should take part in fest, different clubs and everything. So you can do it. It is possible. एक हॉस्टल लाइफ का कैसा होता है, यू फील कि यार नहीं मेरे से नहीं होगा, ओ माय गॉड, इन न्यू सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स. आई नो इट इज इंटिमिडेटिंग, हाईली इंटिमिडेटिंग. नए नए होते हैं, यू हैव टू गेट एडजस्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स. बट गिव टाइम, टेक टाइम, कुछ महीने दो, ट्राई टू गेट एडजस्टेड, आराम से हो जाता है. बट प्लीज गेट योर सेल्फ इन टू एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट्स. टीचर से कॉन्टैक्ट्स होता है, सीनियर से कॉन्टैक्ट्स होता है, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, इवन फॉर रेज्यूमे, वेरेवर, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन.